السلام علیکم جی. یہ ہمارا ایک انفارمل ڈسکشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بڑا پروڈکٹیو ہے، کیونکہ بڑی انفارمل جو گفتگو میں بات چیزیں باہر نکلتی ہیں، خبریں باہر نکلتی ہیں، وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہیں، اور میں پرسنلی اس کو زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. کلاس صاحب آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ لوگ بھی کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا بڑا اچھا رسپانس دے رہے تھے. اچھا کلاس صاحب کیونکہ آج میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ٹی جی وی جی پہ بیٹھتے ہیں میرے فارمل ہوتے بیٹھتے ہیں ٹائی کوٹ یہ وہ منہ سے ایسی ایسا لائیو ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، بندہ ڈر لے جاتا ہے کہ منہ سے کوئی بات نہ نکلے. یہاں پہ تو انفارمل اور کھل کے بات ہوتی ہے، اور آپ کو زیادہ میری کوشش ہے ٹائم دیں، کیونکہ شو میں تو ٹائم آپ کو کم ملتا ہے. لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، سب سے نہیں زیادہ نہیں شکایت تو آپ کی امی کرتی ہے میرا خیال ہے. نہیں نہیں، یہ کبھی شکایت کبھی نہیں کی میری امی نے. جس اچھا کلاس صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے سوال ہیں نہیں لٹرلی جو رہ جاتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ میں اور نہیں پوچھ جاتے، اور میں آپ کا انالیسس کافی ریگولرلی مس کرتی ہوں. میں آپ کو کہتی بھی ہوں کہ کلاس صاحب مجھے ذرا خبروں کا انالیسس عادت پڑ گئی ہے، اب ہم گیسٹ لے لیتے مزہ ہیں آتا کسی ہے. جو ایک بڑا سوال اس وقت انفارمل ڈسکشنز میں آج کل بہت زیادہ ان ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. اگر ہم دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، جس طرح پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس میں جب جو لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے، وہ جب سائٹ پہ ہوتے ہیں، جیسے نواز شریف کی بات کریں تو کلثوم نواز صاحبہ سامنے آئیں، اس کے بعد مریم نے ٹیک اوور کیا پارٹی کو، شہباز شریف، حمزہ شہباز موجود تھے، بٹ اسٹل ایک فیملی کے اندر ہی وہ پالیٹکس کی جو لیگیسی تھی، ان کی پارٹی کی لیگیسی وہ ٹرانسفر ہوتی گئی. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر ٹوک اوور دا پارٹی. عمران خان کے سکسیسر کون ہوں گے؟ علیمہ خان، بشرا بی بی، یا کوئی تیسرا بندہ؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بڑا ہے یہ، کوئی چھوٹا سوال ہے جو آپ نے بم دے مارا ہے سیدھا کہ علیمہ خان صاحبہ ہوں گی یا اور بشرا کون صاحبہ ہے؟ ہوں گی. نظر نہیں آتا. تو صاحب زیرہ خان صاحب کے بچے ہیں نہیں، وہ کبھی پالیٹکس میں ہیں نہیں، نان پولیٹیکل ہیں، اور بلکہ سوشل میڈیا یا ان چیزوں سے ویسے دور ہیں. اور جمیمہ خان صاحبہ بھی ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ میرے بچوں کو نہ ڈریگ کریں، اور کبھی ان بچوں کو ہم نے کبھی سنا بھی دیکھا نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے کبھی. ابھی جمیمہ صاحبہ ہیں، وہ ان کا جب دل چاہتا ہے معذرت کے ساتھ وہ سیاسی ہو جاتی ہیں، جب ان پہ کوئی تنقید آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ غیر سیاسی ہو جاتی ہیں، ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. وہ تو ان کا ہے، لیکن بچوں کا یہ ہے کہ بچوں کو انہوں نے دور رکھا ہوا ہے، انہوں نے ان کو نہیں آنے دیا. ایک چیز تو خان صاحب کا جو ان کو پرابلم ہو رہا ہے اس وقت جیل میں ہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے جو ان کو کیا ضرورت ہے سکسیسر کی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی اگر ان کو سیفر میں اگر 14 سال سزا ہوتی ہے، جس کے چانسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی ایک پٹیشن جائے گی کہ ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. یہ جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوئی تھی، لوگوں کو بھول گیا ہوگا جب ان کو سزا ہوئی تھی نا 2017 میں، پناما میں، 18 میں، تو اس کے ساتھ ہی ایک پٹیشن چلی گئی تھی، ثاقب نثار تھے یا جو بھی سپریم کورٹ میں، کہ ان کو ہٹائیں. نو از اے کنوکٹڈ، اور کنوکٹڈ آدمی انڈر دا لا کسی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا. سو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور ان کے ہاتھ سے جو ٹکٹیں جاری کی ہوئی تھی کوئی 2018 کے الیکشن کی، وہ واپس ہو گئے تھے، اور ہمیں زیادہ کچھ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بننا پڑ گیا تھا. پھر شہباز شریف صاحب وغیرہ جو ہے ان کو بنایا گیا تھا. سو خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے اگر ان کو سزا ہوئی. اس کے بعد اب خان صاحب کو اپنی پارٹی کسی نہ کسی کو ٹرانسفر کرنی ہے. آپشن 3 ہے. ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں، بہن ہے ان کی، وہ بھی پولیٹیکلی طور پر ٹھیک ہے اس طرح ایکٹیو نہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ان کا نام جو ہے نا ضرور پاکستانی شی مارکیٹ از میں رہتا ہے. پرومیننٹ. چیز پرومیننٹ کہ خان صاحب کی وہ اکیلی بہن پہلے پرومیننٹ ہوئی تھی، باقی بہنوں کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ان کے ناموں کا پتہ تھا. وہ بعد میں جب خان صاحب کی کوئی 1-2 دفعہ گرفتاری ہونے لگی تو انہوں نے وہاں جلوس نکالا تھا لاہور میں، وہ ایک جس میں لاٹھی چارج بھی ہوا تھا، یہ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، گرفتار بھی ہوئے تھے شاید. سو اس سے پہلے یہ تھی علیمہ خان صاحبہ تھیں، پھر ان کی جدادیں کو نکل آئی تھی دبئی میں، پھر کوئی امریکہ میں تھیں، وہ بزنس تھا، وہ سلائی مشین ہے. تو پھر تو اپوزیشن نواز شریف صاحب نے ان پہ وہ بنانے شروع کر دے. پھر کوئی ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کوئی ایمنسٹی اسکیم وغیرہ تھیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ بفور جوائننگ پالیٹکس شی واز پولیٹیسائزڈ. وہ خان صاحب کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا گیا، اور ان کو جو اپوننٹ گروپ تھا اسپیشلی نواز لیگ وغیرہ، تو نواز شریف اور مریم پہ جب اٹیک ہوتے تو وہ پھر اس پہ آ کے علیمہ پہ وہ اٹیک کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی بہن کے بھی تو فلاں فلاں چیزیں ہیں، یہ ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے، ان کا نہیں بتاتے. سو سپریم کورٹ وغیرہ میں وہ چیزیں بھی ہوئی ساری. ابھی ان پہ کیسز بھی ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. پھر ایک اور بہن ہے، ان پہ کیس ہے، تھاؤزنڈز آف کنالز انہوں نے زمین ہمارے لیا چوبارہ میں لی، اس کی علیحدہ ایک اینٹی کرپشن کی اس کی ہو رہی ہے. سو اب تمام بہنیں 19-20 وہ آ رہی ہیں، لیکن سرکل کے ان میں اندر سے آ سب رہی سے ہیں. زیادہ ایکٹیو جو ہیں، جو میڈیا کو بھی فیس کرتی ہیں، ان کے میڈیا میں تعلقات، دوستیاں، جان پہچان بھی ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہیں. دوسری سائڈ پہ بشرا صاحبہ ہیں.
बुशरा साहबा जितने डोमिनेंट हैं वो सबको पता है, जिस तरह की चीज़ें सामने पे हैं। शुरू में तो कहा गया कि आप पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं तो उनका नाम भी ना लें, उनको ड्रैग भी ना करें, भला भला ना करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनके करीबी थे, ओन चौधरी साहब जैसे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। जब अलीम खान ने बताई, सब नाम अलीम खान ने बहुत सारा, अच्छा ये तो अब ले रहे हैं ना, चलो अब हम कह सकते दबाव पे होगा, चलो मान लिया जी इनको दबाव डाला जाता है जी, वो उस्मान बुज़ार साहब पे, सॉरी उस्मान डार साहब पे भी दबाव होगा जी, हबीब ये क्या फरूख नाम, हबीब जी फरूख पे भी होगा। लेकिन इनसे पहले ओन चौधरी साहब कह चुके थे, उन्होंने भी बताया था कि कितना पॉलिटिकली तौर पर इन्फ्लुएंस रखती हैं, मशवरे देती हैं, और वो खान साहब को बहुत सारा गाइड करती हैं, स्पिरिचुअली करती हैं या अदरवाइज करती हैं। फिर अलीम खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें की, फिर RTO आई थी, आपको याद होगा एग्जैक्टली मैं वो याद कराने जिसमें लगी वो थी, डायमंड जिसमें वो साहब, इंस्ट्रक्शंस रियाज दे मलिक रही थी साहब रिगार्डिंग दी सोशल मीडिया पॉलिसी, वो भी आई कि थी। किस तरह से लेके इसको लीड करना है। और फिर उनकी जो ऑडियो आई थी रिगार्डिंग द गिफ्ट्स तोशा खाना के, वो घर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं बाहर जा रही हैं, सो रियाज मलिक की भी के साथ भी आई थी जो वहाँ पे उनकी बेटी about the की थी ring, सारी, बिल्कुल। सो वो एक्टिवली थी। अब खान साहब का ये है कि इनमें से क्या करेंगे, अगर ये स्टेज आती है कि उनको रोक दिया जाता है कि आप पार्टी टिकट पे साइन भी नहीं कर सकते, आप नॉमिनेशन भी नहीं कर सकते, फिर खान साहब क्या करेंगे? इन्हें करना पड़ेगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ इनको सजा हुई और रोक दिया गया, कोर्ट ने रोका, जो कि करवाएंगे ये अपनी कोशिश, उस वक्त फिर इन्होंने बुशरा साहब और अलीमा खान साहबा में से एक पिक करना है। अब अगर ये बुशरा साहबा को पिक करते हैं तो इट विल बी ह्यूज कंट्रोवर्सी आएगी। हालांकि वो, अच्छा इन दोनों को आप ये देखते हैं जो खान साहब से मिल के आती है, अलीमा खान साहब की गुफ्तगू कुछ और होती है भाई के बारे में, नोट करें, सेहतमंद है, ठीक है, खाना अच्छा मिल रहा है, माहौल अच्छा है, ही स्पिरिट्स ही। लेकिन जब बुशरा साहबा मिल के आती हैं तो वहाँ से जो मैसेजिंग होती है वो जो खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि वो जहर देने की जो बातें हो रही थी, उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, उनकी सेहत गिर रही। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ही बंदे से उसके दो करीबी लोग मिल के आ रहे हैं, दो डिफरेंट वर्जन दे रहे हैं, इनमें क्या हिकमत है, इसमें क्या, आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। सो अब आप अपना गैस इसमें बताएं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है आपस में, ये भी एक एंगल बाहर निकल रहा है, क्योंकि अगर एक जैसी कोऑर्डिनेशन हो या कम से कम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो तो एक तरह की बात बाहर आए ना। सो ये खान साहब का ये अलीमा खान साहिबा की पोस्चरिंग ये होती है कि शी वांट्स कि वो इमरान खान साहब को वीक ना दिखाएं, अब या ये ना कहें कि लोग जो है वो हिम्मत छोड़ दें। बुशरा बीबी साहिबा बस कहती हैं बस बहुत हो गया, खत्म करो अब इसको। दो बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ये लीडर को जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं, दोनों साइड से देखते हैं। बुशरा साहबा ये कहती हैं कि खान साहब कमज़ोर हो गए, खाना नहीं मिल रहा, उनकी तबीयत, उनको जान को ख़तरे हैं, बला बला, वो क्यों कह रही हैं और ये क्यों कह रहे हैं। तो देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैच, दोनों को एक हम अलग-अलग करके देखते हैं। अलीमा खान साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कहे बुशरा साहबा भी ठीक कह रहे हैं। अब आप कहेंगे दोनों ठीक कह रहे हैं तो गलत कौन है? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल उठाया। वो ये चाहती है कि लोगों को ये मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए कि आपका जो कप्तान है, आपका जो लीडर है, लोग किसी को लीडर क्यों मानते हैं कि हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा ज़हीन है। वो काम, मतलब हीरो कौन होता है? जो काम मैं सोचता हूँ, जो कभी गिव अप ही नहीं करता, मैं सोचता हूँ और कोई बंदा कर लेता है, वो मेरा हीरो है। बट दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ए हीरो। सो खान साहब उनके नज़दीक वो हीरो है जिन्होंने जनाब फौज से लड़ गए, एजेंसियों से लड़ गए, जर्नलों से लड़ गए, नवाज शरीफ से लड़ गए, जनाब जरदारी से लड़ गए, मौलाना से लड़ गए, पूरी दुनिया से लड़ गए, अमेरिका से लड़ गए। अच्छा ऊपर जाए जरा, अमेरिका से लड़ गए, सऊदी से लड़ गए, चाइनीज से लड़ गए, यूरोपियन यूनियन से लड़ गए, और बाद में उन्होंने कहा मैं कल ही काफ़ी। अब ये बहुत बड़ा माचो स्टाइल था जिसने हिट हुआ बड़ा कि मैं कल ही काफ़ी है जनाब। इस पे तो उन्हें ट्रेंड चला PTI वालों ने। हमदर्दियां मिल गई सारी। नहीं, इसमें हमदर्दियां नहीं थी, इसमें प्राउडो थी, ब्रेवरी थी, बहादुर आदमी पूरी दुनिया से लड़ गया जनाब, जो खान साहब ने अपना इमेज बनाया। उसके क्या नुकसानात उन्हें हुए, मुल्क को हुए, इकानमी को हुए, पूरी दुनिया दुश्मन बन के हम आइसोलेशन में चले गए, अकेले रह गए, इसको छोड़ दें। खान साहब अपना इमेज बिल्ड कर रहे थे, जो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली किया उन्होंने। ये तो सो आप उनका ट्वीट देखें, जो ट्वीट आया वहां से जेल से, जो उन्होंने किसी को मैसेज करके ट्विटर से, अलीमा खान साहिबा वाली बॉडी लैंग्वेज, वो अल्फाज हैं कि मेरा वर्कर वो डिमोरलाइज ना हो, मायूस ना हो, मेरी लीडरशिप ना गिव अप कर दे, लोग भाग ना जाएं, उम्मीद दिलाएं कि खान डटा हुआ है, खान ना झुका है, ना बिका है, ना कहीं रुका है, हम खड़े हुए हैं। सो ये ब्रावडो, ये आपकी एक ग्लैडिएटर, मैवरिक, एक वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड, कि मुझे 4 महीने जेल में रख के कोई नहीं तोड़ सका, मैं खड़ा हूँ। नो दैट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेजेस टू द ये मासेस जो डिमोरलाइज्ड हैं, पता नहीं खान को इलेक्शन में लड़ने देते हैं, नहीं लड़ने देते, खान का क्या बनेगा। तो फिर बुशरा भी उस पे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो लिहाजा वो बिल्कुल ठीक दे रही हैं कि मैंने खान को एक लार्जर देन लाइफ दिखाना है। अब बुशरा साहब क्या कह रहे हैं, वो होता है विक्टिम कार्ड, जो वो पहले भी कहती होती थी कि खान साहब के बारे में ना लोगों को बताएं, जेल में मुश्किल हो रही है, ज्यादती हो रही है, फलां हो रही है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का एक मिजाज है।
वो उस मिजाज को वो कैच करवाती है। वो मिजाज क्या है कि बड़ा आदमी के साथ कोई भी छोटा सा उसको कांटा भी चुभ जाए ना, आवाम रोने बैठ जाती है। ये ग्रीक का भी यही था। अब वो कहते हैं ट्रेजिडी क्या होती है, एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी वो कहते हैं आम आदमी की कोई ट्रेजिडी नहीं होती। रोज यहाँ पे कोई ना कोई बंदा बेचारा आम आदमी कोई ना कोई तकलीफ में से गुजरता है, वो कोई ट्रेजिडी नहीं है। ट्रेजिडी होती है जो बड़े आदमी के साथ हो, बादशाह के साथ हो, प्रिंस के साथ हो, शहजादे के साथ हो, वो शहजादी मलका, उसको कोई दुख पहुंचे, कोई उसका मर जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, उसकी टांग टूट जाए या वो कत्ल हो जाए, वो बड़ी ट्रेजिडी, पूरे अवाम रोने बैठ जाती है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री यही रहा है कि बड़े आदमी के साथ कोई भी वाकया होगा आम आदमी डर जाता है कि यार अगर इसके साथ ये हो सकती है ट्रेजिडी, मैं तो कोई चीज नहीं तो हूँ, कुछ भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी चीज थी, ये तो ये बादशाह था, प्रिंस था, शहजादा था, वॉरियर था। सो वो उसके साथ वो करते, सिंपैथी दिखाना शुरू कर देते हैं, वो उसके साथ आंसू बहाना शुरू कर दें, जिसको उस लिटरेरी ज़बान में कैथारसिस कहा जाता है। और ड्रामों में आप अक्सर देखते होंगे लोगों को वो रुलाया भी जाता है, मतलब वहाँ ट्रेजिक सीन डाले जाते हैं, और साथ में लोगों को फिर वो स्पेस देने के लिए दरमियान में कॉमिक रिलीफ की एक टर्म होती है, लाइटर उस पे भी। फिर वो उसमें रंगीला साहब टाइप आ जाएंगे, लहरी साहब आ जाएंगे, फिर उसमें 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 कोई मजाहिया करेक्टर था कि लोगों को अगले सीन के लिए तैयार किया जाए। सो वो जो है वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि लोगों को बताया वो जाए, बीच में थोड़ा ड्रामा ड्रामा डालती है, ड्रामा एज इन थोड़ा इमोशनल टच आता है बीच में। सो वो ये कर रही है हाँ। कि उनको, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आई हैं, मतलब पाक पतन से, रूरल एरिया से, हम, मुझे पता है मैं खुद देहाती आदमी हूँ, रूरल बैकग्राउंड है, वहाँ पे इस तरह की सिंपैथी बड़ी जल्दी देती हैं, औरतें देती हैं, खवातीन ज्यादा होती हैं, हाय है बेचारा सोना 10 नौजवान है बेचारे नल क्या थी गए, जुल्म थी गए, जेल एच पा देते ने। ये भुट्टो साहब का मैंने खुद सुना, मेरी मतलब मुझे कहने दें, जिस दिन भुट्टो साहब को वो हुई थी, वो फांसी हुई थी, मैं उस वक्त, मुझे आज तक वो शाम याद है कि हमारे घर खाना नहीं पका, अम्मा बेटी रो रही है कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई है। अगले दिन अखबार आया था वहाँ, मुझे आज भी याद है। रीजन कि लोग, हालांकि कोई भुट्टो साहब की वो नहीं थी, एक ये था कि कोई बंदे को फांसी लग गई है, एक इंसान को मार दिया इन्होंने, इस मुल्क का वजीर आजम था। ये 79 की बात बता रहा हूँ मैं, उस वक्त की बात है ये, कि अम्मा का मुझे आज तक याद है कि बैठी रो रही थी कि भुट्टो साहब को फांसी लगी। इसी तरह बहुत सारी खवातीन आज भी रो रही होती हैं। आप ट्विटर पे जो सोशल मीडिया, घरों में मैं भी मिलते रहता हूँ, आप भी मिलती रहती होगी बहुत सारी में। अब मुझे नहीं पता आपकी आंखों में कभी सुबह शाम कोई खान साहब कोई खान साहब की इस हालत में आपकी आंख में आंसू आए या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बहुत बंदा सारे, बशर है, क्लास सब कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा वो उस चीज इतनी को बड़ी बड़ी माफी नामे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम बीच में कोई चीज है, हमारे साथ भी कुछ हुआ होगा। बता देना, मैंने तो माना है ना चीज, बताया। अब आप भी बताएंगे आप कितनी दफा रोई है कि खान साहब को देख के जुल्म हो रहा होना तो खैर जरा थोड़ा सा है, सख्त हो जाता है। हाँ चले मुश्किल हो जाता है। चलो, कुछ लेकिन जानने वालों में आपका क्योंकि हल्का है, नहीं, बाप खासा वो तो वसी है, इधर बरके देखें बोलने उधर में। देखें सब तरफ यही हाल यही होता है ना। सो वो चीज एक्सप्लॉइट होती है, सारे कहते हैं देखो जी खान ने ना, एंड यू वेरी राइट अबाउट इट कि इट्स नॉट कि कोई उनको पॉलिटिकली उनसे एग्री करता है या नहीं करता है। ज्यादा जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि यार इतना पॉपुलर लीडर है, इतने लोग उसके पीछे हैं, और ऐसा अंजाम, ऐसा नहीं होना अच्छा, फिर चाहिए। लोग पता है क्यों खान साहब को वो चीजें की थी? 2-4 चीजें जो मैं फील करता हूँ लोगों से। लोग जब इसको कंपैरिजन में देखते हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, तो इमरान खान उनको फरिश्ता लगता है। तो वो कहते हैं ये देखो जी इतना इन्होंने लूटा, डाकू थे, चोर थे, या मनी लॉन्ड्रिंग की, $60 मिलियन आसिफ जरदारी जिनीवा ले गया, बेनजीर भुट्टो साहब नेकलेस में पकड़ी गई थी, उन पर सजा हुई थी जिनीवा में। इधर इनके देखे एवन फील्ड निकले, 5 दुनिया के बड़े आजमों में इनकी जदादें निकल आई हैं, बच्चे इनके अरबपति बन गए। उसके मुकाबले खान को देखे, खान ने तो कुछ नहीं किया, खान के वजीरों ने करप्शन किया, खान तो बड़ा क्लीन है उसने। अच्छा, अगर किया है, एक और आर्गूमेंट भी है, तो अक्सर लोग कहते हैं जी उन्होंने 40 साल करप्शन किया, अगर खान ने 3.5 साल का 40 साल के साथ क्या मवाजना बनता है? मैं उनको कहता हूँ मतलब यह कि 40 साल खान को खुला छोड़ दिया जाए कि वो फिर वो मोहल्ले में फिरे, वो भी कल को यही बन रहा है। मतलब रास्ता तो वही नजर आ रहा है जो मेरी रह रही है। वो कहते हैं देख का एक चावल काफी होता है। सो बहरहाल ये चीजें अब खान साहब को ने फैसला करना है। क्लास साहब, आप हमेशा ये कहते हैं कि मेरी जो ट्रू इंस्पिरेशन है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो बेनजीर भुट्टो साहिबा है पॉलिटिकली। इस पे कल उन पे बात कभी बात करेंगे, कभी नहीं, कल बात कर लेते हैं। आज के लिए मेरा ख्याल है राना साहब क्योंकि एक्चुअल मेरी इंस्पिरेशन अगर पॉलिटिक्स में रही है या मुझे कोई पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई तो वो बेनजीर इस भुट्टो पे साहिबा बहरहाल आई है मयून रिजर्वेशंस और एप्रिसिएशन भी है बेनजीर साहबा के लिए, लेकिन कुछ मेरे एतराजात भी हैं। डेफिनेटली आपका अल्लाह एंगल डिफरेंट है उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन स्टिल बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक फिगर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें उनसे उन्होंने मतलब पब्लिक उसमें अपने गवर्नेंस में वज़ीर आज़म के तौर पर ब्लंडर भी मारे हैं, गलतियाँ भी। इस पे बात करेंगे, उस पर यकीनन अच्छी डिस्कशन होगी। और अब आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं।